مگر ثاقب نثار نہ آئے. ثاقب نثار کیوں نہ آئے؟ ان کا تحفظ اس وقت کی حکومت کرتی آئی اور بیان بازی کرتی آئی. یہی فواد چودھری کمیٹی میں آ کر کہتے رہے کہ وہ تو نہیں آئیں گے. ان کی ویڈیو موجود تھی. کیا جو جسٹس جاوید اقبال تھی ان کی بھی ویڈیو تھی؟ کیا اداروں کے سربراہان جو ہیں وہ بلیک میل ہو کے آج بھی اس طرح کا انصاف عمران خان لیتا رہا، جو انتقام لیتا رہا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاپولر شخص جو ہے اس کے لیے انصاف، اور جو یہ کہتے ہیں فواد چودھری، میں نہیں کہہ رہا، تو پھر یار طے کر لیں کہ جو 50,000 ووٹ لے گا وہ چھوٹی موٹی چوری دھمکی کسی کو دے سکتا ہے. جو 2 لاکھ ووٹ لے گا اس کا بھی ایک حد کا تعین کر لیں کہ وہ کس حد تک کسی کو دھمکی دے گا. اور جو 1 کروڑ ووٹ لینے والا کسی جماعت کا سربراہ ہوگا اس کو یہ اختیار پھر ہوگا جو آج ہے کہ وہ جو بھی ریاستی اداروں سے کھلواڑ کرنا چاہے وہ کر لے. مگر ہم بتا رہے ہیں کہ اگر یہی سلسلہ رہا تو لوگ خود سے باہر آ رہے ہیں. اب میں جو بات سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، پاکستان کے مختلف صوبوں میں لوگ خود سے انصاف کے حصول کے لیے اور اس کی جو پاکستان کے آئینی اداروں کے خلاف جو بول رہا ہے، جو للکار رہا ہے، اس کی گرفتاری تک لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. کل جو میں دیکھ رہا ہوں شیخوپورہ میں بھی پنجاب بار کونسل کے جو ممبر ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. اس کے بعد کچھ اور شہروں میں سن رہا ہوں، کچھ صوبوں میں سن رہا ہوں، آزاد کشمیر سمیت سن رہا ہوں. بھئی میں تو ایک قانون کا طالب علم ہوں، پھر میں بھی شرکت کروں گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اداروں میں بیٹھے لوگوں سے جب ناانصافیاں ہو جاتی ہیں تو ایک عدل، ایک آئین جس نے پاکستان کا پڑھا ہے وہ آئین کو پڑھتے ہوئے انصاف تو دیتا ہے. اور اگر سب مایوس ہو جائیں آئینی اداروں میں بیٹھے لوگوں سے تو وہ دیکھتے ہیں ترازو کی طرف اور محترم اعلیٰ عدلیہ کی طرف. ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس کا نوٹس لیا جائے گا، لوگوں کو باہر آنے سے پہلے انصاف ملے گا. اس کی للکار جو ہے سلطان راہی والی، اس کو کوئی نکیل ڈالے گا، ادارہ نکیل نہ ڈالے گا تو پھر لوگوں کو مجبوراً انصاف کے حصول کے لیے باہر آنا پڑے گا. یہ نوبت نہیں آنی چاہیے. اور خاص طور پر میں پرائم منسٹر سے یہ کہوں گا کہ وہ لوگوں کی آواز سنیں. اگر آپ نواز شریف سے، ذوالفقار بھٹو کی جماعت سے انصاف نہیں کر سکتے تو لوگوں کے ساتھ جو یہ کھیل کھلواڑ کر رہا ہے عمران خان، اس کی کرپشن اور آئینی حدود و قیود کو جو یہ پھلانگ رہا ہے اس کو نکیل نہیں ڈالیں گے تو کوئی آپ کو جس جذبے سے آپ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے سیاست قربان کر دی ریاست کے لیے، ریاست کو بچانے کے لیے، ریاست اس وقت تک نہیں بچے گی جب تک آپ آئین کو تحفظ نہیں دیں گے، جب تک آپ آئینی اداروں کو تحفظ نہیں دیں گے، جب تک آپ لوگوں کو انصاف یقینی نہیں بنائیں گے اور انصاف دینے والوں کو تحفظ فراہم نہیں کریں گے. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی پچھلے دنوں ایک فیصلہ ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ جو دوسری پارٹیوں یا دیگر جو جگہ ہیں وہاں پر جو منتخب نمائندے ہیں سیاستدان، ان کی نمبر پلیٹس، ان کے جو ہے پٹیاں وہ نہیں لگیں گی. حالانکہ سیاستدان اس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے،
तो उसके बावजूद ये हुक्म आया, तो इस पर किसी भी पार्लियामेंटेरियन ने कोई इस पर रद्द नहीं दिया, ना कोई ऐसा बयान दिया कि हाउ इज पॉसिबल। देखें, बड़ा एक मकसद है जिस मकसद के लिए आज हम बात कर रहे हैं, ये छोटी बात है ना लगे, मगर इंसाफ मिले। अच्छा मियां साहब, यहाँ पर अभी मियां साहब आप अभी वज़ीर दाखिला से कह रहे हैं कि इमरान खान को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म से भी आप जो बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं, आपके तो ये कुलीग भी हैं, आपके करीबी लोग भी हैं, तो आप खुद उनसे आपकी बातचीत हुई इस हवाले से? देखें, मैं वहाँ भी बात करता हूँ और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये अपने तौर पे बात नहीं कर रहा। मैं ये गली कूचों में जो बातें हो रही हैं, जो जलसे जुलूसों के स्टेजों से बातें आ रही हैं, पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहा है और ये शख्स उसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है, ये ब्लैकमेल कर रहा है हालात से, अदारों को भी, अदारों के सरबराहान को भी, पाकिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है इससे फ़ायदा उठाते हुए ये अपने लिए NRO लेना चाहता है जो हम किसी तौर नहीं लेने देंगे। देखें, मैं समझता हूँ कि रियासत जिस मुश्किल में है, अवाम जिस मुश्किल में है, कोई पाकिस्तानी जो है इस साजिश का हिस्सा नहीं बन सकता, मगर जो ये खिलवाड़ कर रहा है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान मुखालफ कुव्वतें इसके पीछे हैं और इक्का दुक्का यहाँ से भी जो सहूलतकारी हो रही है, यही तो मेरा मुतालबा है, यही तो कौम का मुतालबा है कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं कौम को एतमाद में लेते, क्यों नहीं बताते कि क्या वजह है कि नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिल सकता, क्या वजह है कि इसके गुनाहों की इतनी लंबी फहरिस्त है, इसके बावजूद इसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मियां साहब, जैसे कि आपने ऐलान किया कि कल शेखुपुरा से आप जलसों का आगाज कर रहे हैं कि ये जो इमरान खान है ये इदारों पर दबाव डाल रहा है और उसको पकड़ा नहीं जा रहा, आप समझते हैं कि इमरान खान जलसे कर रहा होगा, फिर नून लीग और PDM की जो दीगर जमातें हैं वो भी अपनी जो स्ट्रीट पावर लेके आएंगे सड़कों पर, इससे अफरा तफरी होगी। ये बेहतर नहीं है कि जो इदारे हैं जिन्होंने कानूनी कार्रवाई करनी है, जिसके खिलाफ भी अगर इमरान खान के खिलाफ नीले दाग का केस है या दूसरे केसेस है, तो वो फौरी तौर पर एक्शन ले ताकि ये मुल्क अफरा तफरी से मजीद बच सके। उस्मान, आप बात ठीक करें, मगर मैं थोड़ी करेक्शन कर दूं कि मुस्लिम लीग या बाकी जमातें जो हैं वो जलसे जुलूस नहीं कर रही, खुद से जो लोग निकल रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि वो मौका नहीं आना चाहिए कि लोग खुद से निकल के मजीद जो ये बगाड़ मुल्क के अंदर देखना चाहता है इसकी ख्वाहिश कोई पूरी करे, बल्कि अदारों में बैठे लोग जो हैं, अदारों के सरबराह जो हैं, इसकी गुफ्तगू का, इसके एजेंडे का, इसकी साजिश का, इसकी ख्वाहिश का नोटिस लें ताकि मुल्क को इंतशार से बचाया जा सके, जो इंतशार ये पाकिस्तान के अंदर पैदा करना चाहता है। और ये पहली दफ़ा नहीं है, इस शख्स ने पहली दफ़ा सिविल नाफरमानी का, हुंडी के जरिए पैसा भेजने का, अदारों पर हमला इसने किया था और ये ख्वाहिश आज भी उसकी तकमील करना चाहता है। देखें, नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ, आज तक बेगुनाह होने के बावजूद नवाज शरीफ बाहर बैठा है, मगर हमने कभी भी अदारों पर हमले का तसव्वुर नहीं किया। हमने कभी भी अपनी जुबान इसलिए नहीं खोली, हमारे पास बहुत सी चीजें हैं, हमारे साथ जो नाइंसाफियां हुई, इस रियासत के साथ जिसने नाइंसाफियां की, इस रियासत को जिसने जितना नुकसान किया, मगर हमने फिर भी वो बात नहीं की, इसलिए कि कौम को, हाँ ये बात जरूर करते आए हैं, करते रहेंगे कि आईनी हदूद में रहते हुए काम करें, इसी में मुल्क की भलाई है। हम कभी भी राज जो हमारे पास हैं वो जबान पे नहीं लाना चाहते, मगर किसी को ये इजाजत नहीं दे सकते कि कोई जबान पे बातें लाए और ब्लैकमेल करे अदारों में बैठे लोगों को और अपनी मनपसंद की फैसले ले और ख्वाहिश करे कि मुझे NRO मिले, ब्लैकमेल करके, ये हम नहीं होने देंगे। अच्छा मियां साहब, आप अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन मार्क छोड़ के चले जाते हैं, लोग उस सवाल का जवाब ढूंढते रहते हैं, किसी की समझ में नहीं आ रहा।
इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के छोटे बिरादर जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। मुस्लिम लीग नून के डाई हार्ड वर्कर और कुर्बानियाँ देने वाले राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला है। सर कौन है जो इस शख्स को गिरफ्तार करने में रुकावट बना हुआ है? कौम की रहनुमाई करें, कौम निकलेगी, वरना कौम तो उसके पीछे। देखें बात सीधी सी है कि आप देख रहे हैं, मैंने कोट किया कि अगर एक इंटरम बेल बगैर पेश हुए कंफर्म किसी और की हुई है तो वो बता दें। मैंने आपसे ये कहा कि बदकिस्मती इस मुल्क की देखें कि एक 25 मेंबरान का फैसला एक आता है और 10 मेंबरान का फैसला दूसरा आता है, और पंजाब हुकूमत किस तरह बनती और टूटती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों पर, पाकिस्तान पर रहम किया जाए, और जो शौकत सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, जो इमरान खान फवाद चौधरी कह रहे हैं कि बंद कमरों में फैसले होते हैं, वो कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, मेरे साथ सब कुछ होने के बावजूद मैं कभी भी शिकायत अपनी जुबान पे नहीं लाऊंगा। मैं तो कह रहा हूं कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, राना शमीम साहब, अरशद मलिक जज जो फौत हो गए हैं, उन किसी एक को तो सुना जाए, किसी एक चीज का नोटिस तो लिया जाए। भाई कोई नोटिस लिया जाए, बुलाया जाए। क्यों नहीं जवेद हाशमी को बुलाया जाता भाई? क्यों नहीं तलाल चौधरी ने जो पिछले दिनों बात की है साकिब निसार साहब के हवाले से, क्यों नहीं उसको नोटिस किया जाता? क्यों नहीं बुलाया जाता उसको? और क्यों नहीं, और मैं तो अपनी बात तो दूर की बात, और भाई जो इंसाफ देने वाले हैं, अगर उस जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को देखें और वो अपने इंसाफ के लिए दर दर फिरें, और जो एक इंतहाई मोहतरम जस्टिस काजी फायज ईसा, जिनके बाप ने, जिनके वालिद ने पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानियां दी, कायदे आजम के साथी थे, एक बहुत बड़ा खानदान जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देकर पाकिस्तान को वजूद में लाने में एक किरदार जिनका, उसका बेटा जस्टिस फायज ईसा, उनके साथ जो कुछ हुआ, इंसाफ फराहम करने वालों के साथ जो कुछ हो रहा है, मैं अपनी शिकायत क्या करूं? मैं कौम की शिकायत क्या करूं? मैं नवाज शरीफ की शिकायत क्या करूं? फिर सबके इल्म में है चीजें। यही वो बात है जो हम करना चाहते हैं कि खुदा के लिए अब पाकिस्तान पर रहम किया जाए और पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए। पार्लिमानी कमीशन में पीटीआई के लोग भी होने चाहिए, और वो कमीशन, और ये पार्लिमानी कमीशन इसलिए कह रहा हूं कि ये कानून का, आइन का, आईनी अदारों का मुहाफ़िज़ अदारा है। इससे वजूद में आते हैं अदारे, तो इन पर एक कमीशन बने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ताकि आइंदा आने वाला वक्त जो है, कम से कम आइंदा आने वाली नस्लों को एक खुशहाल पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान और किसी एनआरओ से पाक पाकिस्तान हम दे के जा सकें। बहुत शुक्रिया जी। बता रहे हैं पहले भी आप क्यों आप हुकूमत में होते हुए इन अदारों को दुरुस्त नहीं कर सकते, जो अपने हलफ की पासदारी करे अदारों में बैठे लोग? आप रो रहे हैं कि हम ठीक नहीं कर सकते इस मुल्क को। आप क्या मेरे साथ रो नहीं रहे?